इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। Let us start the topic. Effect of temperature. एक्चुअली एहरीन्स इक्वेशन को डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली हमें यहाँ पे एहरीन्स इक्वेशन को डिस्कस करना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने जैसे ही पहले भी पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को फॉर एवरी 2 और 3 फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करेंगे, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, rate of reaction becomes almost double or triple. Rate of reaction becomes almost double or triple. Rate of reaction doubles or it becomes almost it triples. Rate of reaction becomes almost double or triple for every 10 degree rise in temperature. तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। बेसिकली यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इट्स इक्वल टू, इट इज रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेंटीग्रेड divided by rate constant at T डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। Experimentally, this has been determined at this term. Every 10 degree rise in temperature, this has been determined at a standard temperature of 25 to 35 degree centigrade. That means 10 degree rise in temperature. Experimentally, it has been determined at this temperature. So basically, इसका मतलब क्या है? For every 10 degree rise in temperature, rate becomes double or triple. For example, हमारे पास 10 degree rise in temperature है. We have 10 degree centigrade temperature. Rate, for example, is K. अब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, मींस इंक्रीज द टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल। लेट इट बिकम्स डबल, इट बिकम्स 2K। तो अगर आप टेम्परेचर को और 10 डिग्री इंक्रीज करोगे, यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन, दैट इज 30 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर को और 10 डिग्री इंक्रीज करोगे, रेट विल बिकम डबल, फ्रॉम 2 to it will become 4K. Similarly, if you increase the temperature by more 10 degrees, that is 40 degree, the rate will become 4 or 16K. This is how we can explain this concept, temperature coefficient of a reaction. This is how we can explain this concept, temperature coefficient of a reaction. Basically, कल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चंस करेंगे तो इस पे क्वेश्चंस होंगे, वहां पे इस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। सो दिस विल बी इम्पोर्टेंट, आप इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना, सो दैट जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आप इजीली फिर सॉल्व कर सकोगे। दिस इज वन थिंग, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन becomes double or rate of reaction becomes triple. This has experimentally been observed. Now, effect of temperature on rate of reaction, it was studied in detail by Arrhenius. This thing was studied in detail by Arrhenius. Arrhenius has given an equation known as Arrhenius equation. तो Arrhenius भाई साहब ने यहाँ पे हमें equation दी in order to explain effect of temperature on rate of reaction. Now, Arrhenius equation is K is equal to rate constant is equal to A exponential of minus EA by RT. We will explain these terms in detail. K जो यहाँ पे है, it is rate constant. K is rate constant of a reaction, and Arrhenius A is Arrhenius constant, or it's called Arrhenius pre-exponential factor. It's called pre-exponential factor. Now, what is pre-exponential? The factor which comes before exponent. This thing is exponent. तो इससे पहले जो फैक्टर आता है उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। It is also called Arrhenius constant. It's also called Arrhenius constant. इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, इसको Arrhenius फैक्टर भी कहते हैं। It's also called Arrhenius factor
इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर. इट्स आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर. एंड व्हाट इज दिस ईए? जो ईए यहाँ पे है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. इसकी भी बात होगी. इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. एंड आर वी नो दैट आर इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर. And R is constant, its value is 8.314 joules per Kelvin per mole. तो यहाँ पे this is Arrhenius equation. तो Arrhenius equation में हमें याद रखना है. Arrhenius equation डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है. Arrhenius equation is K is equal to A exponential of minus E A by RT. K is equal to A exponential of minus E A by RT. मतलब क्या है इस इक्वेशन का? मतलब यह है कि जो ये रेट कांस्टेंट है, जिसकी रेट कांस्टेंट, इसका अगर हम प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर प्लॉट करेंगे वी विल गेट एन एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्राफ बिकॉज दिस थिंग इज एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्राफ मिलता है. तो यहाँ पे आप ग्राफ भी बना सकते हो. यहाँ पे हम ग्राफ भी बना सकते हो. बेसिकली दिस थिंग हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जाम्स. आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट के को प्लॉट कर सकते हो. यू विल प्लॉट रेट कांस्टेंट के with temperature के साथ प्लॉट करो. you will get an exponential type of graph. so this is the exponential type of the graph. you will get this type of graph. तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ आएगा. this is very very important. this graph is very very important. on plotting rate constant with temperature we will get exponential type of graph. this is exponential graph. एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो यहाँ पे मिलता है हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ. वी गेट एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो इस चीज को हम और डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे. इस ग्राफ को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली आया था. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था. तो डिस्कस करेंगे इस Arrhenius इक्वेशन को, इन फैक्टर्स को, एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस दीज थिंग्स. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को पहले. तो Arrhenius इक्वेशन हमारे पास है K is equal to A exponential of minus EA by RT, where EA is activation energy. तो यहाँ पे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाऊंगा. यहाँ पे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाऊंगा. लेट अस टेक अ रिएक्शन. कोई रिएक्शन में लूंगा. वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज एनर्जी. यहाँ से एनर्जी मेरी, and this is reaction coordinate or progress of reaction. रिएक्शन कोऑर्डिनेट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. मान लो मेरे जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर एट दिस प्लेस. मेरे रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं. दीज आर रिएक्टेंट्स. so these reactants they have to combine, they have to cross an energy barrier. Let this is the energy barrier that the reactants have to cross. This is the energy barrier that the reactants have to cross. And after that these reactants led to the formation of the products. तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिएक्शन A प्लस B गिव्स C. तो यहाँ पे A प्लस B मेरा रिएक्टेंट है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द एनर्जी ओवर हियर इज जीरो. यहाँ पे E इज इक्वल टू जीरो है. तो बेसिकली जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है. दिस एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट्स possess this much amount of the energy. तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स के पास इतनी एनर्जी है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. This energy is called energy of reactants and this energy is called energy of products. इसलिए मैंने इसको ER लिखा, इसको मैंने EP लिखा. लेकिन रिएक्टेंट्स को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है so that they can pass this stage, so that they can pass this energy barrier. This is the energy barrier. पहले रिएक्टेंट्स को ये वाली एनर्जी क्रॉस करनी है so that they can form products. तो यहाँ तक जाने के लिए रिएक्टेंट्स के लिए और ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए. बेसिकली वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी कोलिजन थ्योरी से आती है. कोलिजन थ्योरी. तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं they always collide, they are always doing collisions, they are always in constant motion. Means collisions will take place between A and B type of the molecules. There will be A type of molecules, A type of molecules, and B type of molecules, B type of molecules. There will be always collisions between reactant molecules.
So how many collisions are possible? There are large number of collisions possible. There are large number of collisions possible. Millions of collisions are possible. You can say large number of collisions are possible. क्या सारे collisions प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं? No, the answer is no. यहाँ पे हम लिखेंगे not all collisions led to product formation. Not all collisions led to product formation. Led to product formation. Only those collisions led to product formation which have proper orientation. तो collisions के पास proper orientation होना चाहिए. Those collisions led to product formation which have proper orientation. The collisions with proper orientation are few. तो कुछ ही collisions होते हैं जिनके पास proper orientation होती है and they led to the product formation. These collisions which have proper orientation, they led to product formation. They led to product formation. तो यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं विद दोज कोलिजन्स व्हिच हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. जिन कोलिजन्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है they led to collision, they led to product formation. Now what is meant by proper orientation? By proper orientation we mean that these collisions, during these collisions reactant molecules can cross energy barrier. They can cross energy barrier. Means वो collisions जिनके पास proper orientation है, only those collisions can reach this activation barrier. Only with those collisions reactant molecules can reach this activation barrier. तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी बैरियर है, दिस एनर्जी बैरियर, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी EA. अगर मैं बोलूंगा आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी कितनी है, यू विल से दैट दिस एनर्जी इट इज ET टोटल एनर्जी. तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ET जो है टोटल एनर्जी जो है, इट विल बी इक्वल टू EA प्लस इट विल बी इक्वल टू एनर्जी which is already possessed by the reactants. तो यहाँ से आप EA को निकाल सकते हो. You can determine EA from this. Therefore, EA will be equal to total energy E total minus energy already possessed by reactants. So this is your activation energy. This is very important. So this is your activation energy. ये बात activation energy की है and this reaction is endothermic reaction. मैंने कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाई एंडोथर्मिक रिएक्शन की. व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक? बिकॉज प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यू कैन डिटरमाइन इट. एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR. तो यहाँ पे HP ज्यादा है कंपेयर टू HR एंड HP इज मोर, डेल्टा H इज पॉजिटिव. तो डेल्टा H अगर पॉजिटिव है देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. सो बेसिकली दिस इज एंडोथर्मिक. इस एक्टिवेशन बैरियर को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो यहाँ पे एक्चुअली आपके AB मॉलिक्यूल्स आते हैं, दे विल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. तो यहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ लेट मी नो आपको ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई? टेल मी, आपको ये बात समझ में आ गई जल्दी से? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा आगे, इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी करते हैं. एरिन्स इक्वेशन की बात करेंगे. तो एरिन्स इक्वेशन में बेसिकली हमने कहा था, एरिन्स इक्वेशन में हमने कहा था रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA बाय R. दिस वाज एरिन्स इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल. मतलब इसके ग्राफ्स बनाएंगे, जो ग्राफ्स एग्जाम में पूछे गए हैं उन ग्राफ्स को बनाएंगे. तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन का बोथ साइड से लॉग ले लो. मैं लिखूंगा ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका भी ln लेंगे, A एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA बाय RT. इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यू विल गेट ln ऑफ K इज इक्वल ln ऑफ A प्लस ln ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA बाय RT. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो EA विल कम बिफोर EA आगे आएगा.
यू विल गेट द आंसर। तो ये आगे आएगा, तो यू विल राइट ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ a। तो ये आपका आगे आएगा माइनस EA बाय RT, माइनस EA बाय RT। तो ये आपका आगे आएगा इस ln ऑफ EA बाय RT, इसको हमने आगे लाया, ये ln खत्म किया। सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बेसिकली दिस टाइप ऑफ ग्राफ कम्स इन द एग्जामिनेशन। यहाँ से अगर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बिटवीन ln ऑफ k वर्सेस 1/t, ln ऑफ k वर्सेस 1/t, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज y इज इक्वल टू दिस इज mx। या मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर लिखूंगा सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और मैं इस इक्वेशन का लिखूंगा ln ऑफ k इज इक्वल minus EA divided by R into 1/t plus ln of A. Now it becomes easy. This is Y, this is M, this is X, this is C. So this becomes equation of straight line. Y is equal to mx plus C. The slope over here is negative. अगर मैं ग्राफ करूंगा प्लॉट between ln of k versus this 1/t, then you will get a straight line. तो आपको यहाँ पे straight line मिलेगी, you will get a straight line. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद द स्लोप। स्लोप आपका कितना होगा? द स्लोप विल बी दिस, m विल बी स्लोप दैट्स माइनस EA बाय RT। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस EA बाय RT। नाउ व्हाट इज दिस स्लोप? स्लोप आपका tan थीटा के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा। तो अगर यहाँ पे कोई भी tan थीटा बनता है, फॉर एग्जांपल tan 45 बनेगा, tan 120 बनेगा, तो आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्टिवेशन एनर्जी को एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफ। दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्राफ हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन JEE एग्जाम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ना अब आप इसको और ज्यादा और डिटेल फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो। अब आप इसको और डिटेल फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो। अब ln को आप कन्वर्ट कर सकते हो लॉग में। यू कैन कन्वर्ट दिस ln इनटू लॉग। सो इस इक्वेशन को बेसिकली हम कन्वर्ट कर सकेंगे इनटू लॉग फॉर्म। वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लॉग फॉर्म। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू लॉग फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लॉग फॉर्म। तो अगर log ln को log में कन्वर्ट करना होता है, बेसिकली क्या करना होता है, अगर ln को कभी भी आपको ln को log में कन्वर्ट करना होगा, अगर आपको ln को log में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ से 2.303 मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको ln को log में कन्वर्ट करना होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2.303। t कहाँ आएगा स्लोप में? अच्छा, t नहीं आएगा, राइट, t नहीं आएगा, t is not in the slope. I'm sorry Varya. So t is not in the slope. Very nice, very nice, very nice. तो t यहाँ पे नहीं आएगा स्लोप में, सिर्फ EA by R आएगा। तो यहाँ पे गलती से RT भी लिख दिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इस ln को कन्वर्ट करेंगे log में। whenever you convert ln into log, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है by 2.303। नाउ सी, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ln ऑफ k इज इक्वल ln ऑफ a माइनस EA बाई RT, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से लॉग इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस विल बी 2.303 लॉग ऑफ a। तो दिस ln, दिस विल बी 2.303 लॉग ऑफ a माइनस EA बाई RT, माइनस EA बाई RT। तो बेसिकली इसको डिवाइड करो 2.303 से। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा बाय 2.303, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा बाय 2.303, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा बाय 2.303। तो यहाँ से कट हो जाएगा। यू विल गेट द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन आएगी log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT। तो यहाँ से आप एक और ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो इस इक्वेशन में। दिस इज y, तो ये जो आपके पास है दिस इज m,
दिस इज m, दिस इज x, ये t आपके पास है x, and this is c. So this again becomes equation of the type y is equal to mx plus c. यहाँ पे आपका स्लोप फिर से नेगेटिव आएगा, यू कैन प्लॉट अ ग्राफ। तो यहाँ से आप एक और ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो बिटवीन लॉग ऑफ के, यहाँ से log of k versus 1/t. Again the straight line will be obtained with negative slope because they are negative cosine over here. तो यहाँ पे आपका जो स्लोप आएगा that will be minus EA by 2.303 r. That's minus EA by 2.303 r. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये तीन ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। These are three graphs which you have to remember over here. तो ये तीन ग्राफ्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। These are three graphs which you have to remember over here. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे ये बात क्लियर हुई, लॉग ln को हमने कैसे लॉग में कन्वर्ट किया, ये बात क्लियर हुई? यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वी विल डिस्कस नेक्स्ट पेज पे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स निकालेंगे रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स। विल डिटरमाइन रेशियो ऑफ rate constants, ratio of rate constants at two different temperatures, at two different temperatures. Will determine ratio of rate constants at two different temperatures. For example, हमारे पास rate constant K1 है at temperature T1, हमारे पास K2 rate constant है at temperature T2। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ K1 एंड K2। तो यहाँ से हमें निकालना है रेशियो ऑफ K1 एंड K2। Now we know that according to Arrhenius equation, log of K1 is equal to minus EA divided by 2.303 R। यहाँ से हमने K1 लिखा इसलिए हम T1 लिखेंगे प्लस log of A। Let this is equation first। सेकंड इक्वेशन में हम सेकंड रेट कांस्टेंट को लेंगे, log of K2 is equal to minus EA divided by 2.303 RT2 प्लस log of A। तो यहाँ से इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे log of K2 by log of K1, log of K2 by log of K1, या इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, you can write log of K2 minus log of K1, that will be equal to log of K2 by K1। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, you will get, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, you will get EA divided by, you'll get EA divided by 2.303 RT1 minus EA divided by 2.303 RT2। बेसिकली मैंने इसको पहले नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटाया, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, RT1 को पहले लिखा। That's why I wrote here RT1 first। तो बात एक ही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R। इसको कम ले लो, you'll get 1 divided by T1 minus 1 divided by T2। So this is actually the ratio of constants of rate constants at two different temperatures। Further अगर आप इसको सॉल्व करोगे, log of K2 by K1 it's equal to EA divided by 2.303। तो यहाँ से T1 into T1 T2 से इसको मल्टीप्लाई करो, you will get T2 minus T1 is T1 divided by T1 T2। तो आप इसको ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे T1 पहले क्यों आया? क्योंकि मैंने माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर करके इसको पहले लाया, अदरवाइज मैं इसको लेता बाद में माइनस साइन को चेंज करता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ना टेल मी, ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So basically this is the effect of temperature on rate of reaction।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज एरिनस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली हमने काइनेटिक्स को ऑलमोस्ट खत्म किया, इसमें एक टॉपिक रह गया कोलिजन थ्योरी, उसका भी मैंने आपको आइडिया दिया है। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। एरिनस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन होंगे। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन ओवर हियर। एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करेंगे बिकॉज वी आर लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। Question number 1 over here is for a particular reaction. Question number 1 is for a particular reaction. We have a certain reaction. कोई reaction है हमारे पास. We'll write question number 1 over here. For a particular reaction, कोई reaction है हमारे पास. For a particular reaction, temperature coefficient is 2. Temperature coefficient is 2. So temperature coefficient is given, it is 2. If the rate of reaction, if the rate of reaction at 10 degrees centigrade, if the rate of reaction at 10 degree centigrade is x, तो कोई rate of reaction हमारे पास at 10 degree centigrade x है, then find rate of reaction at 40 degree centigrade। तो आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे रेट है। तो व्हेन योर रेट इज, जब आपकी रेट x है, टेम्परेचर इज 10। अगर आप टेम्परेचर को 20 करोगे रेट विल बिकम 2x। अगर आप टेम्परेचर को 30 करोगे, यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ और 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करोगे, रेट विल बिकम डबल, दिस विल बिकम 4x। आप टेम्परेचर को और 10 डिग्री राइज करोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट विल बिकम डबल। तो यहाँ से डबल हो जाएगा, 4 4 आर 16x। तो आंसर विल बी 16x। हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन? हमने कुछ भी नहीं किया। वेरी गुड 16x। वेरी गुड नीलोफर जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक और क्वेश्चन को यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। So the question is for nth order reaction, frequency factor is 100। frequency factor मतलब A is 100। A को हम frequency factor कहते हैं। I'll write simply A is 100। For nth order reaction, A is 100। Activation energy is given, A is equal to, activation energy is 19137, 19137। So this is activation energy 19137 kilojoule per mole। This is activation energy। Find, तो हमें निकालना है find rate constant at, find rate constant at, find rate constant at 727 Kelvin। तो आपको निकालना है रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। So the options over here are 1, number second option is 10, number third option is 100, number fourth option is 1000। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, विल सी। तो हमारे पास है log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस 2 EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। तो बेसिकली हम पहले t को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे t हमारा है 727 प्लस 273, दैट विल बी इक्वल टू 1000 केल्विन।
तो टेम्परेचर यहाँ पे 1000 केल्विन है. log A is equal to 100. So we can write over here log K is equal to log A, that's pre-exponential factor, that's pre-exponential factor that's given 100. तो मैं यहाँ पे log 100 लिखूंगा. क्या मैं log 100 को 10 raised to power 2 लिखूंगा? तो मैं इसको 10 raised to power 2 लिखूंगा यहाँ पे. इसको मैं 10 raised to power 2 लिखूंगा यहाँ पे. माइनस ये मेरे पास है 19137 divided by 2.303 into earth 8.314 into t, that is 1000. तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log 10. log 10 is equal to 1. तो बेसिकली दिस इज 2. 2 minus 19137 divided by 2.303 into 8.314 into 1000. तो बेसिकली आप इसको सॉल्व करो. आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट log k is equal to, this thing will come out to be 1. ये सारा ये अगर आप सॉल्व करोगे, this will come out to be 1. This will come out to be 1. तो you can write or log of k is equal to 2 minus 1. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log k is equal to 1. Therefore log को खत्म करो, k will be equal to this one will be raised to power. log को खत्म करो, k will be equal to log के बदले यहाँ पे 10 raised to power 1. log को खत्म करो, यहाँ पे आपको आएगा 10 raised to power 1 that's equal to 10. क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? टेल मी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मुझे बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना, एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपका मेरा 1 आता है. इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 1 आता है यहाँ पे, दैट्स 2 minus 1. log k is equal to 2 minus 1. तो 2 minus 1 is equal to 1. log को यहाँ ले लो, it will be 10. तो यहाँ पे k will be equal to 10 raised to power 1. दिस इज इजी. तो अगर आपका यहाँ पे 2 आएगा, you write 10 raised to power 2. अगर 3 आएगा, 10 raised to power 3. That's how you can get the answer. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? How to solve this type of question? Very nice, very good. है ना? Very good. पीर मोमिना, very good. नीलोफर, मारिया, very good. Very nice, very nice. तो यहाँ पे हमने खत्म किया रेट ऑफ रिएक्शन एरिनस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे खत्म किया. अच्छा, मैंने आपको ग्रुप में एक मैसेज भेजी थी, अगर आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स सीखना है तो मैं आपको ईद के बाद क्रैश कोर्स सिखाऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट जिनमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो उनको हम क्रैश विद द हेल्प ऑफ क्रैश कोर्स में लूंगा उनका. तो मुझे बताओ, आप में से कोई इंटरेस्ट है? आप में से किसी को फिजिक्स का क्रैश कोर्स लेना है? तो आई विल स्टार्ट दैट. टेल मी. अगर किसी को आप में से फिजिक्स का क्रैश कोर्स पढ़ना है तो टेल मी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट. 11th का भी? यस, बोथ 11th का ही 12th का इन्होंने पढ़ा है.